हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन हमने स्टडी किया था अबाउट कार्नोट साइकिल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टर्लिंग साइकिल. In case of Stirling cycle, all the processes are reversible in nature. In case of Stirling cycle, जो working substance हम लोग use कर सकते हैं, it can be air or helium or nitrogen or hydrogen, etc. स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ स्टर्लिंग साइकिल दो चीजें हो सकती है. फर्स्ट, स्टर्लिंग engine, and second, Stirling refrigerator. Students, Stirling engine is basically going to convert heat into useful mechanical work. This Stirling engine was invented, developed and patented in the year 1816 by Robert Stirling with the help of his brother James Stirling. And when I say Stirling refrigerator, this is nothing but Stirling engine working in reversed direction. Yes, स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने आपको कार्नोट साइकिल के टाइम पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था. कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एक्चुअली कार्नोट engine working in reversed direction. Similar is valid over here also. So Stirling refrigerator is actually Stirling engine which is working in reversed direction. मतलब यहां पर हम लोग हीट को यूज करके मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन कर रहे थे. यहां उल्टा करना होगा. यहां पे मैकेनिकल वर्क को यूज करके हीट का आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा. एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, ये जो स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर है, दिस इज एक्सटेंसिवली यूजफुल in the field of cryogenics. Stirling refrigerator is used in the field of cryogenics to produce extremely low temperature. Okay. Now students, in case of ideal Stirling cycle, total there are 4 processes. Out of these total 4 processes, 2 process isothermal होने वाले हैं and दूसरे 2 process isochloric होने वाले हैं. Yes, let me tell you students, this isochloric process is also called as isometric process. In case of isothermal process, the temperature of the system remains constant, and in case of isochoric process, which is also called as isometric process, the volume of the system remains constant. In our case of Stirling cycle students, जो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है वो है प्रोसेस ए बी एंड प्रोसेस सी डी. इवन यू कैन चेक बच्चों, प्रोसेस ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस एंड प्रोसेस सी डी इज ऑल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस. यस, नेक्स्ट बच्चों, 2 प्रोसेस जो आइसोकोरिक है वो कौन से है? चलिए डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट्स. प्रोसेस बी सी and another is process DA. Process BC, isochoric process, and process DA is also an isochoric process. ठीक है? So students, I think now we can start discussing
अबाउट दीज 4 प्रोसेस है, जिसमें से 2 आइसोथर्मल है एंड 2 आइसोकोरिक है, एक एक करके। ठीक है, चलिए इतना थ्योरी हम इरेज कर देते हैं आपके सामने से। So for Stirling cycle, we are going to start with isothermal expansion given by the process AB in a PV diagram for Stirling cycle. Okay. We'll start with isothermal expansion, that is AB. In this particular process AB बच्चों, the gas, that is the working substance in our Stirling cycle, is going to absorb heat QH. The gas, that is the working substance जो हमने use किया हुआ है in our Stirling cycle, is going to absorb heat QH at constant temperature. That constant temperature is TH. So students, can I say like this? At state A, the initial temperature is TH. Yes. And can you tell me at state B, what will be the temperature? That is, I am asking you the final temperature. It will be same बच्चा लोग, क्योंकि ये isothermal process है ना, so temperature will remain constant. That means during the process AB, जो गैस है बच्चों, यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है, it is going to take heat QH at constant temperature TH. तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, गैस intakes और यू से absorbs, एक ही बात है। Gas intakes heat QH at constant temperature, and that constant temperature we are considering as TH. During this process AB बच्चा लोग, work is done by the gas. बोलो सही है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग, सो वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे स्टर्लिंग साइकिल में, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस. क्या नाम है वो प्रोसेस का? इन अ पीवी डायग्राम प्रोसेस बीसी. स्टूडेंट्स, during the process BC, the gas is going to lose a part of heat जो उसने पहले absorb किया था. Gas is going to lose heat. Even you can check बच्चों, अब देखिए, this is a straight line which is drawn parallel to y-axis. If a straight line is drawn parallel to y-axis, x coordinate will be constant, volume of the gas will be कांस्टेंट. दैट इज द रीजन मैं इसे आइसोकोरिक प्रोसेस कह रहा हूं बच्चों. हाँ, इसका और एक नाम मैं आपको बता चुका हूं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस. सो आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? आइसोकोरिक प्रोसेस बीसी. सो गैस ने जो हीट अर्लियर अब्सॉर्ब किया था QH, उसमें से कुछ हीट गैस क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, लूज कर देगा. And that is the reason students, at constant volume, the pressure of the gas is going to decrease. So volume remains constant, yes? Then gas loses heat. क्या बच्चों पूरा हीट लूज कर देगा? नहीं, गैस विल लूज सम पार्ट ऑफ हीट जो उसने पहले क्या किया था? अब्सॉर्ब किया था. बट फॉर श्योर गैस जो है वो हीट को लूज करने वाला है. एंड स्टूडेंट्स,
Can I say like this? When the gas is going to lose heat, volume तो same है, so pressure will decrease. Pressure will decrease. So the pressure of the gas will be reducing, and that is the reason, students, the temperature of the gas will be reducing. This is very important बच्चों. ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी जो टेम्परेचर था वो तो यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था. क्या था वो टेम्परेचर? टी एच. अभी गैस हीट को लूज कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो फॉल होगा. कहां से कहां? टी एच से होते हुए टी सी. So this time the temperature of the gas, the temperature of the working substance is going to decrease from TH up to TC, TH up to TC. And अगर आपको प्रीवियस सेशन का कार्नोट साइकिल याद है तब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है स्टूडेंट्स. याद है हमने कहा था TC, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, and TH is absolute temperature of the hot reservoir. अब यहाँ मैं absolute क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे जो टेम्परेचर है उसे केल्विन में रखना है. दैट इज द रीजन. अगर आपको absolute नहीं बोलना है, ओके नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ इतना बोलो TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड TH टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर तो भी चलेगा. फिर आप अलग से याद रख लेना कि भाई जो टेम्परेचर है उसे मुझे केल्विन में रखना है. एंड पर्पसली स्टूडेंट्स हम वो सेम डिनोशन यूज कर रहे हैं ना, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. सो प्रोसेस ए बी में आइसोथर्मल प्रोसेस था ये. जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो कांस्टेंट रहेगा, TH 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 TH. बट आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग प्रोसेस BC गैस हीट को लूज कर रहा है, सो टेम्परेचर विल फॉल ओवर हियर. सो टेम्परेचर विल फॉल फ्रॉम TH अप टू TC. बच्चों TH से होते हुए TC. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोसेस CD, विच इज एक्चुअली आइसोथर्मल कंप्रेशन. दिस इज एक्चुअली आइसोथर्मल कंप्रेशन. कौन से प्रोसेस की बात हो रही है? प्रोसेस CD. ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन बच्चों डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो तो यूनिफॉर्म रहेगा. यहाँ पे टेम्परेचर कितना है एट स्टेट C, TC. TC इज लाइक टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर, राइट. सो देन स्टूडेंट्स टेम्परेचर तो सेम रहने वाला है C से D के बीच में, बिकॉज इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट. सो यहाँ पे टेम्परेचर TC, यहाँ पे टेम्परेचर TC. एट स्टेट D व्हाट इज द टेम्परेचर? TC. सेम टेम्परेचर रहेगा बच्चों. सो दैट मीन्स जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाला है. एंड वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होगा? TC. सो स्टेट C पे टेम्परेचर TC, स्टेट D पे भी जो टेम्परेचर है वो सेम है. सेम मतलब TC. ठीक है स्टूडेंट्स. कैन आई से लाइक दिस? इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस heat QC is released by the gas. Released by the gas. Is that fine students? And in this particular case हम ऐसा भी कह सकते हैं that work is done on the gas. Students compression हो रहा है ना, volume of the gas is decreasing. This is isothermal compression. That means work is done on the gas. Students previous जो isothermal process था AB वो आपको याद है बराबर से? हमने वहां लिखा था work is done by the gas because of expansion factor. Over here this is compression, right? So work is done on the gas. दोनों exactly opposite है, mix up नहीं करना है students. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस आने वाला है? आफ्टर आइसोथर्मल कंप्रेशन इट विल बी बच्चों. अच्छा, मैं आइसो तो लिख रहा था, मैं आइसोथर्मल लिखने जा रहा था. इट विल बी स्टूडेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या नाम है उसका? प्रोसेस DA. प्रोसेस DA. दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. यू कैन इवन चेक. Straight line is drawn parallel to y-axis. So x coordinate is constant. Volume of the gas is constant. Isochoric process. That means volume is remaining constant. What about the pressure? Arrow is
being shown upward. That means the pressure of the gas is increasing. The pressure of the gas is increasing, but वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सो इट ऑब्वियसली मीन स्टूडेंट्स दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग. What is the initial temperature of the gas at state D? It is Tc. And over here at state A, temperature should obviously be the higher wala value, and that is the reason it will be for sure Th. इसका मतलब समझा बेटा आपको? जो ए से आपने स्टार्ट किया था, जब चौथा प्रोसेस फिनिश हुआ तो वापस आप स्टार्टिंग पे पहुंच गए. यस, so temperature is going to increase from Tc up to Th. and student, जब टेम्परेचर Th दोबारा हो जाएगा मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, and this cycle will be repeated n number of times. 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, etc. So this is the discussion of your entire Stirling cycle. So students, total in case of ideal Stirling cycle कितने प्रोसेसेस होते हैं? 4. उसमें से 2 प्रोसेसेस होते हैं आइसोथर्मल. चेक करो बेटा. एंड जो बचे हुए 2 प्रोसेस होते हैं वो होते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. हर एक प्रोसेस का डिस्कशन हमने इन डेप्थ किया स्टूडेंट्स. फर्स्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस AB, देन isocoric process BC, then isothermal compression process CD, then isocoric process DA. Okay, so temperature is changing from students TH to TH. यहाँ तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि आइसोथर्मल था. TH to TH, then TH to TC, यहाँ डिक्रीज हुआ टेम्परेचर. देन TC से TC, क्योंकि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस था, यहाँ तो टेम्परेचर सेम रहेगा बच्चों. एंड देन TC से इंक्रीज हुआ अप टू TH. इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? अभी हम ट्राई करेंगे टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल. एंड आई एम गोइंग टू प्रूव स्टूडेंट्स के जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना कार्नोट साइकिल के लिए एंड स्टर्लिंग साइकिल के लिए, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे? चलिए देख लेते हैं बच्चों. ओके, ये मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स. So we are going to start with input heat. You call it as Q input. Q input. बच्चों, context से Q input is nothing but QH. The heat जो गैस ने absorb किया है बच्चों QH, जो heat QH है वही तो है बच्चों input heat. But this process AB is an isothermal expansion. Agree? बच्चों, for isothermal process, do we know this? That the value of changing temperature delta T is equals to 0. That is the reason the value of delta U is equals to 0. During isothermal process, students, change in internal energy is 0. देखिए स्टूडेंट्स, प्रोसेस AB is isothermal expansion and प्रोसेस CD is isothermal compression. तो मैं इन जनरल लिखवा रहा हूँ आपको, मतलब ये जो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ वो आप एक्सपेंशन हो या फिर आपके लिए कंप्रेशन हो, आप दोनों में उसे यूज कर सकते हो. ठीक है. सो डेल्टा U is equals to 0 in case of isothermal process. Now I am going to use the basic formula जो हमने few lectures ago स्टडी किया था हमारे थर्मोडायनामिक्स में. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बच्चों, as per the formula for first law of thermodynamics हम कहते हैं Q
is equals to delta U plus W. एंड फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो डेल्टा U होता है वो तो जीरो होता है ना, तो आप लिख सकते हो Q is equals to W. Is that fine, students? And for an isothermal process, the formula for work done W goes like this: nRT natural log Vf divided by Vi. W work done by the system का जनरल फॉर्मूला nRT ln Vf divided by Vi. Vi denotes initial volume, Vf denotes final volume, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वही टेम्परेचर है जो कांस्टेंट है, कैपिटल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्मॉल n डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स. एंड फॉर योर सिंप्लिसिटी स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसीडर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं नंबर ऑफ मोल्स को n लेके ही सॉल्व करने वाला हूं. अगर जैसा मैंने कहा आपको n को 1 लेना है तो भी ठीक है, आपको फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो वही मिलेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, input heat is actually QH, isn't it? And Q is equals to work done W in our isothermal process. and ये तो isothermal process का ही डिस्कशन हो रहा है बच्चों. मैं प्रोसेस AB की बात कर रहा हूँ, isothermal expansion है वो. So students, अभी Q इनपुट को हम QH लिख रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ QH हमें समझा कि हम वर्क लिख सकते हैं. ठीक है, एंड जो वर्क होता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वो होने वाला है nRT TTT कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा है स्टूडेंट्स? TH. नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, फाइनल वॉल्यूम बताइए आप मुझे. फाइनल वॉल्यूम इज वॉल्यूम एट B, VB divided by initial volume is actually volume at A, that is VA. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हम अभी फाइंड आउट करेंगे Q आउटपुट. Q आउट, आउटपुट हीट, राइट. तो Q आउटपुट को मैं लिखने वाला हूँ QC. QC ये आउटपुट है बच्चों, QC, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू, ये भी तो स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस है, कंप्रेशन है, तो क्या हुआ है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो बेसिक स्क्रिप्ट तो आपको सेम मिलने वाला है. सो Q आउटपुट इज इक्वल्स टू QC विच इज इक्वल्स टू nRT. nRT देखो ना बच्चों, बट यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट TH, ओवर हियर द कांस्टेंट टेम्परेचर इज TC. नेचुरल लॉग ln ऑफ final volume divided by initial volume. Students, final volume means volume at D divided by initial volume means volume at C, that is VC. ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है. फर्स्ट टाइम इट वाज एक्सपांशन, तो हमारा फॉर्मूला एकदम सही है, बट दिस टाइम इट इज कंप्रेशन ना. सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग कंप्रेशन जो हीट है उसे रिलीज किया जा रहा है ना. So that is the reason students formula हम वही रखेंगे but with a negative sign ahead. Alright. So अभी हम students log का property use करने जा रहे हैं. If it is natural log of A by B, कांटा से हम इसे लिख सकते हैं minus of natural log B by A. आप रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिखोगे लॉग को तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा ना. That is what I am going to do right now बच्चों. मैं यहाँ पे इसे लिखने वाला हूँ Q आउटपुट, दैट इज एक्चुअली QC विच इज इक्वल्स टू nRTC. माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, LF में लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल, दैट इज VC डिवाइडेड बाय VD. इज दैट फाइन बच्चों? ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना होगा आउटपुट मैकेनिकल वर्क W. हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट मैकेनिकल वर्क W. कैन आई से स्टूडेंट्स, आउटपुट मैकेनिकल वर्क W विल बी एक्चुअली QH minus QC. यस, इट इज QH minus QC. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम वो एंटायर प्रूफ नहीं करेंगे. रिसेंटली हमने हमारे कार्नोट साइकिल के लेक्चर में किया था ना, इसलिए तो वो लेक्चर काफी लेंदी हो गया था, याद है आपको? एंटायर हमने प्रूफ करवाया था आपको.
अब हम डायरेक्टली वो रिलेशन तो यूज कर ही सकते हैं, आउटपुट वर्क, आउटपुट मैकेनिकल वर्क W आउटपुट इज इक्वल्स टू Q इनपुट माइनस Q आउटपुट, या फिर आप लिख सकते हो QH माइनस QC। टेल मी स्टूडेंट्स, QH माइनस QC, इसे आप क्या लिख सकते हो? NR ओके, ln VB डिवाइडेड बाय VA, इन बिटवीन माइनस है, आगे QC, हाउ मच इज QC? दिस इज QC, NR ln VC डिवाइड बाय VD। इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? सो हम लोग यहाँ से n इंटू आर को कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे TH ln VB डिवाइड बाय VA माइनस TC ln VC डिवाइड बाय VD, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, and this is actually output work W output। is that fine students? ठीक है। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हमने प्लान किया था दैट हम लोग ट्राई करेंगे टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टर्लिंग साइकिल। सो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे। किसका? कार्नोट साइकिल की बात हो रही है? नहीं, स्टर्लिंग साइकिल। तो मैं सबस्क्रिप्ट में एस लिखना चाहूंगा, ईटा एस, एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल। बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी स्टूडेंट्स, it will be output work divided by input heat, yes, या फिर आप इसे कह सकते हैं आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट। का मतलब होता है स्टूडेंट्स Q in, that is actually QH, so work output divided by QH, right? या फिर इंस्टेड ऑफ वर्क आउटपुट आप नेट वर्क भी लिख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है बच्चों, राइट? सो W आउटपुट डिवाइडेड बाय QH, टेल मी W आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W आउटपुट ये रहा स्टूडेंट्स, हम W आउटपुट को लिख रहे हैं NR मल्टीप्लाइड बाय TH ln VB डिवाइडेड बाय VA माइनस ऑफ TC ln VC divided by VD the whole upon QH। Tell me students, आप लोग QH को क्या लिखने वाले हो? That will be NRTH into ln VB divided by VI। Okay with this much students? Yes? कुछ कैंसल हो रहा है तो पारस सर को बताइए। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैंसल हो जाएगा, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी कैंसल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, can't I say like this? Process BC is isochoric process, isometric process, isochoric process, process BC। That means volume at B and volume at C has to be the same, right? And similar you can use for process DA। ये भी तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, और एक नाम होगा आइसोमेट्रिक प्रोसेस, प्रोसेस DA। That means volume same रहेगा, volume at A and volume at D will be equal। ठीक है, that means students हम इतना तो अच्छे से जानते ही है that VA is equals to VD, VA is equals to VD and VB is equals to VC। क्यों ना हम रेशियो फाइंड आउट कर ले स्टूडेंट्स यहाँ पर। दैट मीन्स वी गेट VA डिवाइड बाय VB, VA डिवाइड बाय VB is equals to VD डिवाइड बाय VC। okay, so we are having this VA divided by VB is equals to VD divided by VC। Now we can do one thing students, हम VC डिवाइड बाय VD का फॉर्मूला ऑब्टेन करना चाहते हैं। हम सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स VB डिवाइडेड बाय VA is equals to VC divided by VD। is that fine बच्चों? VB divided by VA is equals to VC divided by VD।
So that means instead of VC divided by VD, we can use VB divided by VA. That means हमें ईटा यानी एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल का फॉर्मूला मिलने वाला है TH ln VB divided by VA, alright, minus TC ln VC divided by VD. VC divided by VD जैसा हमने प्लान किया, we can replace by VB divided by VA. VB divided by VA, the whole upon, tell me बच्चा लोग, TH as it is ln VB divided by VA, ये भी as it is है. So students, from the numerator I think we can take ln, that is natural log, VB divided by VA common. So inside the bracket हमें मिलने वाला है TH minus TC, the whole upon TH into ln, that is natural log VB divided by VA as it is. Students, दिख रहा है क्या कैंसल हो रहा है अच्छे से? So now this ln VB divided by VA will be cancelled. So हमें फॉर्मूला अभी फाइनल फॉर्मेट में मिलने जा रहा है. मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, जो मैंने आपको आइसोथर्मल के बारे में नोट लिखवाया था. ओके, टेल मी स्टूडेंट्स, कैसा दिखने वाला है हमें अभी ईटा का फॉर्मूला. ईटा फॉर स्टर्लिंग साइकिल, ईटा एस is equals to TH minus TC, the whole upon TH. चेक किया आपने? TH minus TC, the whole upon TH. Even आप split कर सकते हो. So we get eta S is equals to TH divided by TH, that is 1, minus TC divided by TH. Split कर लिया students, and हमें मिल गया efficiency for Stirling cycle का formula 1 minus TC divided by TH. What is TC? Absolute temperature of the cold reservoir. And what is TH? Absolute temperature of the hot reservoir. Is that fine? Students, ये right hand side जरा देखिए, 1 minus TC divided by TH. ये तो आपने कार्नोट साइकिल के लिए कार्नोट इंजन का डेरिवेशन किया था, उसके जैसा ही है. सो आपको फाइनली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिलता है स्टूडेंट्स फॉर कार्नोट साइकिल एंड इवन फॉर स्टर्लिंग साइकिल, वो दोनों सेम होता है. ये हमने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन रिलेटेड टू स्टर्लिंग साइकिल. थैंक यू.